AVL tree, remember this thing, first of all, these are binary search trees. So what is the disadvantage of binary search tree? We'll discuss that. So these are binary search tree, and these are also called, these are balanced trees. So we can say, what are AVL trees? The AVL trees are balanced binary search trees. So what is the first of all disadvantage of using binary search tree? If you consider, on average, if you are getting the tree data structure of binary search tree like this, it's at that means the searching time, insertion time in binary search tree, all the operations like deletion time, there are many 3 operations in binary search tree. So if these operations depends are always of order of height, if you have scanned this, it depends on the height of the created tree. If let us suppose this is my tree and the value is 50 here, then 40 here, say 90 here, 90 के left में 50 से बड़ा होगा, 90 से छोटा होगा, 70. Let this value is 100. Let this value is 30. Let this value is 45. If I am getting the tree which is almost complete or a balanced tree whose height is roughly equal to log to the base of 2n, so for my application this is the best tree structure, because insertion, deletion and searching, that depends on the height. Height means कितना डीपली आपका वो पाथ जा रहा है. तो अगर आपका हाइट फुल्ली पैक्ड ट्री है तो हाइट आपकी लॉग टू द बेस 2n होगी. सर्चिंग भी उतना, बिकॉज चाहे वो इंसर्शन है, whether it is insertion or deletion operation, in either of the case first you have to search the location where to do insertion. Searching यहाँ भी लगेगी. Even for deletion, first you have to go for searching the node which you want to delete, starting by searching the same node starting from the root node. तो सर्चिंग ऑपरेशन दोनों में ही लगता है. अगर आप सर्चिंग को वैसे भी डिस्कार्ड कर दो, अदरवाइज बीएसटी बना ही सर्चिंग के लिए है. तो इवन इन आल्सो इन इंसर्शन एंड डिलीशन द अंडरलाइंग लॉजिक इज मेनली द कंप्लेक्सिटी ऑफ द सर्चिंग एल्गोरिथम. अब सर्चिंग डिपेंड करती है आपका कितना डीपर ट्री है. तो अगर मेरा इफ आई वांट टू सर्च फॉर से 120, तो आई हैव टू नियरली डू 3 comparisons, 1 comparison and 2 comparison and 3 comparison, and then 3rd comparison I will say the element is not found. So this is something which is required. So only 3 comparison. If my tree would have been somewhat right skewed, if there are would have been 4 elements, or say 100, if I want to do, there n elements are there. If my height of the tree is order of n, height is same as that of order of n, number of elements in the n. If I want to go for 120, search 120, then I will have to go for n comparison at the most to search for 120. So binary search tree drawback is, if your tree is right skewed like this or left skewed like this, or a zag tree, even in zag tree also the height of the tree will be equal to binary search tree. I'm stressing left में छोटा, right में बड़ा. So that is always a complexity of the operations is order of h. In worst scenario h will become order of n. तो worst case में order of n comparisons होते हैं, चाहे वो insertion हो, चाहे वो deletion हो, चाहे वो searching हो. बेस्ट केस में, एवरेज केस में उसका h होता है log to the base 2n, like which have been shown somewhat complete or perfect binary tree. So binary search tree, when it comes in this direction, worst case scenario, then it is dangerous to use BST because of the high complexity. So what is being done? We are using a variant of BST कि कभी भी आपका BST जब ये बनने लगे ऐसा कोई राइट स्क्यूड या लेफ्ट स्क्यूड बन रहे, ताकि उसकी हाइट उसको बढ़ने ही मत दो, उसको बैलेंस कर दो. तो बैलेंस ट्री क्या होता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन बना के बना है AVL ट्री. तो रिमेंबर दिस थिंग, BST AVL trees are always binary search tree. Simple binary tree can never be AVL tree. So what is the meaning of balanced tree? Balanced tree क्या होता है? उस ट्री के, इट इज अ BST. अभी AVL को BST बनाएंगे. बैलेंस का मतलब क्या है? आपके ट्री की हर नोड का, हर एक नोड का एक बैलेंस फैक्टर निकालते हैं टर्म. बैलेंस फैक्टर क्या होता है? उस ट्री के लेफ्ट सब ट्री की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट, दोनों की हाइट का डिफरेंस. जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, इसी ट्री में हम सीधा बैलेंस फैक्टर निकाल दिया. इस रूट नोड का लेफ्ट सब ट्री नहीं है, राइट सब ट्री भी नहीं है, दोनों की हाइट 0 है. 0 माइनस 0 आंसर इज 0. इसकी बैलेंस फैक्टर 0 आ जाएगा. इस नोड को देखो, इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1. राइट सब ट्री की हाइट कितनी है? 1. 1 माइनस 1, इसकी 0 आ जाएगी. अगर मैं इस नोड की बात करूं, राइट बैलेंस फैक्टर ऑफ दिस नोड इज height of left subtree for this node minus height of right subtree. 1 के लिए
हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री क्या है 1 and 2, 2 minus of only one node, 2 minus 1, that is equal to 1. If I consider this node for this tree, for this node I am this values implicitly as telling the balance vector. यही इस एग्जांपल में इंद्र डाल रखा है. तो height of left subtree minus height of right subtree. What is the height of left subtree? 1 2 3. तो 3 minus of 1, इसका बैलेंस वेक्टर हो जाएगा 2. Balanced trees are such tree where every node has got balance factor either 1, 0 or -1. These are balanced tree. जिस ट्री के किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 हो जाए, ग्रेटर देन 1 का मतलब बैलेंस फैक्टर किसी भी नोड का उस ट्री के अंदर या तो -2 हो जाए या 2 हो जाए, कुछ और हो जाए, इट इज नॉट अ बैलेंस्ड ट्री. उसका फायदा क्या है? बैलेंस ट्री की जो हाइट है log टू द बेस 2n से कभी ज्यादा बढ़ती नहीं है. दैट इज द अपर बाउंड ऑफ दैट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग बैलेंस्ड ट्रीज. तो बैलेंस ट्री में व्हाट आर द दोस बैलेंस ट्री वेयर द बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड इज आइदर इक्वल टू 1, 0 और -1. अब -1 कैसे होगा? सपोज करो एक ये ट्री है, इसका इस नोड का क्या है बैलेंस फैक्टर 0. इस नोड का बैलेंस वेक्टर क्या है? लेफ्ट सब ट्री तो है ही नहीं इसका, तो 0 माइनस ऑफ राइट सब ट्री की में हाइट कितनी है 1, तो इसका बैलेंस वेक्टर आ जाएगा -1. लेफ्ट सब ट्री हाइट माइनस ऑफ राइट सब ट्री हाइट. Let us suppose is taking this example for balance tree. Now this is the example of AVL tree, sorry binary search tree with the balance factor. ये AVL नहीं है ये. This is not a AVL tree. AVL tree क्या होना है? बैलेंस भी हो और बाइनरी सर्च ट्री भी हो. इट इज अ बाइनरी सर्च ट्री. हाउ टू फाइंड दिस? इस लीफ नोड का बैलेंस वेक्टर क्या होगा? 0, क्योंकि लेफ्ट भी नहीं है राइट भी नहीं है. इस नोड का बैलेंस वेक्टर क्या होगा? लेफ्ट सब ट्री माइनस ऑफ राइट है नहीं, तो 1. लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 1 माइनस ऑफ 0, 1. लीफ नोड का बैलेंस वेक्टर पे 0 होता है. इफ यू गो फॉर द बैलेंस वेक्टर ऑफ दिस नोड, height of left subtree minus height of right subtree. What is the height of left subtree? That is equal to 1 minus of height of right subtree is 1 2 3. 1 minus 3, that is equal to -2. तो बैलेंस फैक्टर इस नोड का होगा -2. तो दिस इज नॉट अ बैलेंस ट्री. बैलेंस ट्री का मतलब सभी नोड्स का बैलेंस फैक्टर -1, 0 या 1 नहीं है. या आप कई बुक्स लिखते हैं magnitude of the balance factor should always be less than or equal to 1. If it is exceeding 1, it is not a balanced binary search tree. Now this is example of balanced binary search tree. Or I can say this is also AVL tree. It is AVL tree because it is BST plus balanced tree. ये बैलेंस भी है और BST भी है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ AVL ट्री. AVL tree means it is a such BST whose balance factor of every node is -1, 0 or 1. Got it? Any doubt till this you can ask. Okay, what is how the name AVL came into picture? This was being invented by the scientists Adelson, Velsky and Landis. तो इनके बेसिस के नाम के बेसिस पे उन्होंने इन्वेंट किया था. Balance factor, height of left subtree and height of right subtree for every node of that tree should be less than equal to 1. तो इसका एक होता है लेफ्ट हाई राइट हाई. अगर किसी नोड का बैलेंस फैक्टर 1 है, 1 कब आएगा? जैसे इस नोड की बात करते हैं, ऐसा ट्री है तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा? 1. क्यों? लेफ्ट सब ट्री की हाइट क्या है? 1 माइनस ऑफ 0, राइट सब ट्री की 0, तो इसका 1. तो ये बन जाएगा लेफ्ट हाई. इसका जो बैलेंस फैक्टर है लेफ्ट हाई है. ऐसे इसका राइट हाई है. दैट इज योर नोटेशन. इफ यू वांट टू यूज यू कैन, दैट इज योर चॉइस. नाउ कमिंग टू this is the derivation of why the height of AVL tree always remains as order of log to the base 2 of n. If you want I can discuss, otherwise I can skip it for the moment. It is guaranteed to be there in the of order of log to the base 2n given n nodes. करते कैसे इसको? Let us do the shortcut. अभी ये कहते हैं if there is an AVL tree with minimum number of nodes, then one of the tree will have height. एक कहते हैं एक ट्री ले लो, एक ट्री बनाओ AVL ट्री. AVL ट्री में क्या होता है? अगर उस ट्री की हाइट h है, जो भी AVL ट्री है, लेट अस सपोज उसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट h-1 है, दूसरे की h-2 है. इसका मतलब क्या है? आपकी जो ट्री है, अगर आपका पूरे ट्री की हाइट h है, तो कहते हैं लेफ्ट की है आपकी h-1, राइट की है h-2, क्योंकि ये रूट नोड आ जाएगी बीच में इसके बाद. लेफ्ट सब ट्री की h-1, राइट की h-2 से इन्होंने एग्जांपल लिए. तो कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स विद लेफ्ट सब ट्री कहते हैं आपके से नंबर ऑफ नोड्स AVL ट्री की NH है, मतलब टोटल नंबर ऑफ नोड्स ऑफ दिस हाइट.
एंड एच माइनस का 1 का मतलब क्या है, अगर मेरी किसी रूट ट्री की हाइट 5 है तो लेफ्ट वाले की होगी सब ट्री की 4 है और राइट सब ट्री की से 3 है। उसका पर्पस क्या है, हाइट का मतलब क्या है, तो ताकि इसका बैलेंस फैक्टर रफली +1 आ गया सपोज कर लो, क्योंकि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 4, हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 3, तो 5 आपकी, अगर आपकी हाइट इसकी टोटल है ऑब्वियसली 5 होगी, 4 + 1 5 यूनिट, तो 4 - 1 लेट इट बी पॉजिटिव साइड, +1 इसकी है, तो इट इज एन एवीएल ट्री we are assuming. So that is number of nodes in left subtree is equal to h minus 1. Number of nodes in right subtree that is equal to the height h is h minus 2 is h minus 2. इन्होंने notations दे रखी हैं. Total number of nodes क्या होंगी? Root node or number of nodes in the left subtree and number of nodes in the right subtree. So left subtree में n, ये n times of this values है, and it is just a notation which has been used. Number of nodes in left subtree and right subtree of height h minus 2 plus of 1 including root node. So these are total number of nodes which are there. So what we have to do, n of h minus 1 is greater than n of h minus 2. Obviously whose height is more, it will have more number of nodes. It is true. अगर इसमें 10 नोड्स है सपोज कर लो, तो ऑब्वियसली इसमें कम नोड होंगी एक स्टेप, तो ऑब्वियसली क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा है h minus 1 की. तो यूजिंग दिस नोटेशन यू विल बी पुटिंग द वैल्यू n of h is greater than, put this value of h minus 2 inside this. It is just derivation part. When you're putting, you're getting this corollary for the same 1 plus 2 times of h minus 2. If you will explore it, now this is the equation you want to solve. अगर आप इसको खोलोगे रिकर्सिवली, रिकर्जन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको अगर खोलोगे n of h minus 2, explore it further, इसको h minus एक स्टेप आगे खोलो, 2 into h minus 2 को इसकी फॉर्म में लिखो, 2 into n of, again 2 into h minus 4, n of h minus 4. इसको फिर खोलो और ये भी बन जाएगा 2 क्यूब n of h minus 6. अगर आपको h minus 4 को इसकी फॉर्म में लिखोगे, तो इसको खोलते जाओगे तो रफली ये बन जाएगा, अगर मैं इसको ट्राई करूं तो ये बन जाएगा 2 की पावर i/2 n टाइम्स ऑफ h माइनस i, जनरल केस. इसको जब आप इसको एक्सपेंड करते जाओगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, रिकर्जन से, तो हमें पता है n of 0 is 1. n of 0 मतलब एक ट्री जिसकी हाइट आपकी 1 यूनिट, हाइट 1 है, उसमें हाइट 0 है, इसकी एक नोड की हाइट 0 होती है. n of with height is equal to 0, नंबर ऑफ नोड्स उसमें एक होती है, दिस इज द बेस कंडीशन. इसको आप पुट कर दो, पुट h minus i is equal to 0, i will become equal to h. तो आप इसको पुट कर सकते हो, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स इज 2 raised to power h/2. तो ये बन जाएगा आपके नोटेशन. जब आप इसको ये नोटेशन बन जाएगी, दैट मीन्स n of h is greater than 2 raised to power h. आप लॉग लोगे दोनों तरफ से, तो हाइट हमेशा log of h से, log of number of नोड जो भी हैं उस हाइट ऑफ ट्री के लिए, h is generally bounded by log to the base 2 of n. That is the reason आपकी जो AVL ट्री है वो हमेशा log to the base of 2n complexity की ऑर्डर में रहती है, वर्स्ट केस में उससे कभी भी बढ़ेगी नहीं. That is the best part of AVL tree. That is why AVL trees, अगर आप बोलोगे बाइनरी सर्च ट्री सर्चिंग के लिए यूज करना है, immediately the thing comes into mind that you are using basically AVL tree for your purpose, because AVL tree guarantees you searching, insertion, deletion operation in log to the base 2 of n time. अब ये करते कैसे हैं? सिंपल सर्चिंग डिलीशन कैसे होती है, वैसी सर्चिंग जैसे आप सिंपल BST में करते हैं वैसी सर्चिंग होगी AVL ट्री की. If somebody do ask you what is the searching criteria in AVL tree, AVL tree or binary search tree, do the searching the way you did in the binary search tree. तो आप BST में ही करोगे. इंसर्शन डिलीशन में थोड़ा सा फर्क है. जब आपने बाइनरी सर्च ट्री की तरह, जैसे मुझे इंसर्शन करनी है, यहाँ तक मेरा ट्री बन चुका है, से दिस वाज माय ट्री, तो मुझे इंसर्ट करना है से 21. तो इंसर्शन आप बाइनरी सर्च ट्री में कैसे करते हैं, रूट से कंपेयर करते हो, वैसे ही करनी है इंसर्शन. फिर यहाँ जाते हो, फिर यहाँ जाते हो. ये तो चलो ट्री नहीं बना अभी, AVL नहीं है, यहाँ तक सपोज को AVL ट्री था, बैलेंस था. तो अगर आप मुझे इंसर्ट करना है 21 को, तो 21 पहले यहाँ पर कंपेयर होगा, BST की तरह इंसर्शन करो 21 को. उसके बाद आफ्टर इंसर्शन चेक करो क्या उसके, क्योंकि वो तो खुद एज ए लीफ नोड इंसर्ट हो रहा है, जो नया नोड है, नया नोड तो लीफ नोड है, लीफ नोड का बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 ही होता है, क्योंकि लेफ्ट सब ट्री राइट सब ट्री का डिफरेंस अब निकालेंगे. तो ये हो सकता है कि उसके पेरेंट नोड या इमीडिएटली और प्रीडिसेसर नोड्स, प्रीवियस नोड्स जो हैं, उसका बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो गया हो. तो इंसर्शन BST की तरह करो, फिर उसके अपवर्ड जाओ, उनकी नोड्स का बैलेंस फैक्टर फिर से काउंट करो.
जिसका बैलेंस वेक्टर डिस्टर्ब हुआ है, दैट मीन्स डिस्टर्ब का मतलब -1, 0 या 1 के अलावा 2 हो गया है, या तो 2 होगा या -2 होगा। तो अगर किसी का हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसको सेटल डाउन करके रोटेशंस करते हैं, इसको सेट ठीक करने के लिए हम रोटेशंस करते हैं, ताकि वो हर ट्री दोबारा से सेटल डाउन होकर प्रॉपर्ली एवीएल बन जाए। तो डिलीशन में भी ऐसा होता है, सिंपल डिलीशन करने के बाद उसको हम ऐसे बैलेंस वेक्टर को एडजस्ट करने की दोबारा से कोशिश करते हैं। हाउ टू मेंटेन दैट एवीएल स्ट्रक्चर, उसके लिए हमें रोटेशंस लगानी पड़ती है ताकि वो सेटल डाउन हो जाए ठीक। आई विल टेक वन एग्जांपल से, आपका ये ट्री था, दिस वाज अ ट्री। अब अभी तक बैलेंस वेक्टर इसका कोई दिक्कत नहीं आई। अब सपोज कर लो मेरा यहाँ तक था, से दिस वाज द केस, यहाँ 40 आ गया, यहाँ पर से वैल्यू है 10। अभी तक इसका बैलेंस वेक्टर देखो किसी का डिस्टर्ब नहीं है। इसका बैलेंस वेक्टर क्या है, लेफ्ट सब ट्री हाइट दैट इज 2 माइनस ऑफ राइट सब ट्री हाइट 2 - 1 दैट इज इक्वल टू 1। इसका लीफ नोड है 0 होगा, लीफ नोड है 0 होगा। 20 का क्या है, लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 माइनस ऑफ 0। सभी का बैलेंस वेक्टर -1 0 1 है। अगर मैं इसमें अब इंसर्शन कर रही हूँ, से ये दिस वाज अ करंट सिनेरियो, इट इज एन एवीएल ट्री। आई वांट टू इंसर्ट से इनसाइड दिस से 15, मुझे 15 लॉजिक वाइज इंसर्ट किया, तो 15 होगा यहाँ इसके राइट पे अकॉर्डिंग टू बीएसटी। अब देखो बैलेंस वेक्टर डिस्टर्ब हुआ ट्री का। इंसर्शन सिंपल बीएसटी की तरह इंसर्शन की है। बैलेंस इसका तो ऑब्वियसली लीफ नोड है, इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसका बैलेंस वेक्टर क्या है, 0। इसका बैलेंस वेक्टर क्या हो गया आपका, +1, लेफ्ट सब ट्री माइनस राइट सब ट्री। 0 की हाइट माइनस राइट सब ट्री की हाइट है 1, तो इसका -1 हो गया 10 वाले का। 20 का क्या हो गया, but what is the left subtree height, that is 1 and 2, 2 minus of right तो वही नहीं, 2 - 0, इसका बैलेंस वेक्टर 2 हो गया। 30 का देखो, लेफ्ट सबट्री की हाइट कितनी है, 1, 2 and 3, 3 minus of 1, इसका भी 2 हो गया। तो बैलेंस वेक्टर एक इंसर्शन से जब वो इट नो लॉन्गर रिमेन्स एवीएल ट्री, तो आपको इसमें रोटेशंस लगानी पड़ेंगी ताकि दोबारा से एवीएल ट्री बन जाए। तो वो रोटेशंस क्या है, वी विल डिस्कस दैट वन बाय वन। मेन रोटेशंस आपकी आती है लेफ्ट रोटेशन, राइट रोटेशन, इनका कॉम्बिनेशन ही नेक्स्ट रोटेशंस बनती है। वैसे तो होती है लेफ्ट रोटेशन एंड वन इज कॉल्ड राइट रोटेशन। इसको इन दो रोटेशंस को बोलते हैं सिंगल रोटेशन। आप एक ही रोटेशन करोगे दोनों में। एक होती है डबल रोटेशन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट एंड लेफ्ट। अब ये 4 तरह की रोटेशंस आप कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ट्री। अब ये एज्यूम कर लेना कोई एग्जाम्पल में ये yes, it is a binary search tree which is given right now in the example. लेफ्ट रोटेशन का पर्पस क्या है, जैसे अगर आप इसको एग्जांपल है, सिंपल है, तो ये बीएसटी वैसे बता रखा है। अगर किसी भी ट्री का हम लेफ्ट रोटेट करते हैं, अभी के लिए बैलेंस्ड है, इट इज जस्ट डमी एग्जांपल, रिमेंबर दिस थिंग, दिस हैज नॉट गॉट नथिंग। इसका ये अभी एवीएल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अभी भी कर रहा है, आपको सिर्फ डेमो के लिए। क्या पता है इसके आगे सब ट्री हो, क्या पता है इसके आगे और सब ट्री हो, या इसके ऊपर भी सब ट्री हो। आई एम जस्ट टेलिंग यू द सम पार्ट ऑफ दिस ट्री। तो इस ट्री में अगर बोला जाए लेफ्ट रोटेशन होती कैसे है, कहते हैं लेफ्ट रोटेट अबाउट ए नोड से। क्या पता है इसके ऊपर भी ट्री हो नीचे भी ट्री हो, हम आपको सिर्फ सेक्शन दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो लेफ्ट रोटेशन अबाउट ए में आंसर कैसा आएगा वो देखो, इट इज मोर टुवर्ड्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अगर आपको पिक्टोरियली समझ में आ गया, आप कोडिंग लिख सकते हो। प्रैक्टिस मांगता है एवीएल ट्री, इट इज वेरी इजी। ध्यान से देखो इसमें, अगर मुझे लिखा गया है लेफ्ट रोटेट अबाउट ए, तो अबाउट ए आपको ट्री को लेफ्ट रोटेट करना है, लेफ्ट की तरफ रोटेट करना है, लेफ्ट की तरफ घुमाना है। तो ट्री में क्या होगा, सी ऊपर आ जाएगा, जब आप लेफ्ट की तरफ रोटेट करोगे सी ऊपर आ जाएगा। सी के राइट में जी वैसे ही रह गया, तो सी ऊपर आ गया उसकी ए की जगह पर, सी के राइट में जी है। अब सी का लेफ्ट कौन लेके जाएगा, क्योंकि सी के लेफ्ट में तो ए आएगा जब आपका ट्री ऊपर की तरफ घूमेगा। तो ए विल टेक केयर ऑफ दिस वेरी लेफ्ट चाइल्ड ऑफ सी। जब आप ऊपर को घुमाओगे तो सी ऊपर आ गया, ए नीचे चला गया, सी का राइट का जी वहीं का भी रह गया। तो ए का राइट विल बी टेकन, सी का राइट एफ जो है वो ए का राइट बन जाएगा। सी का जो लेफ्ट का जो भी जितना भी सब ट्री था वो ए का राइट उसको उठा लेगा, ताकि क्योंकि ए के राइट में वो जा सकता है अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री विदाउट वायलेटिंग बाइनरी सर्च ट्री प्रॉपर्टी। यहाँ तक कुछ आइडिया लगा? तो ये आपको रोटेशंस प्रैक्टिस के साथ आपको करनी पड़ेंगी। अब देखो राइट रोटेशन, अगर मुझे राइट रोटेशन अबाउट ए करना है, बताना पड़ेगा किसके अबाउट रोटेशन करना है, अबाउट ए। ध्यान से पिक्टोरियली देखो, तो ये ए नीचे की तरफ आ जाएगा, बी आ जाएगा इसकी तरफ, बी ऊपर आ जाएगा, बी ऊपर आएगा, बी के लेफ्ट में डी तो वैसे ही रहा,
ए नीचे चला गया, पूरा का पूरा सब ट्री ये वाला, तो ये बन जाएगा बी ऊपर आ गया, पूरा का पूरा सब ट्री ये वाला ऐसे ही आ गया, सी एफ जी नीचे थोड़ी देर नीचे स्टेप खिसक गया, बी के लेफ्ट में डी तो है ही। अब बी का ये राइट कहाँ जाए, कहते ए का लेफ्ट उठा लेगा बी का राइट, बिकॉज पहले ए का लेफ्ट बी था, अब ए के लेफ्ट में आ जाएगा जो भी बी का सब ट्री है, नॉट नेसेसरली एक नोड, इट मे बी सम सब ट्री आल्सो, तो वो ए का लेफ्ट नोड चाइल्ड नोड की तरफ बन जाएगा। ये बस पिक्टोरियली आपको समझना है कैसे ये हो रहा है। अगर ये ग्रैप्स हो गया, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड होल ऑफ द एवियल ट्री रोटेशंस। लेफ्ट की तरफ घुमाओ, राइट की तरफ घुमाओ। एनी डाउट टिल दिस? अब आ रही है जी लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, चार तरह की रोटेशन होगी। लेफ्ट ऑफ लेफ्ट लगा लो, सिंपल लिखो कि लेफ्ट रोटेशन, सॉरी इसको बोलते हैं राइट रोटेशन, राइट की तरफ रोटेट कीजिए। क्यों राइट की तरफ रोटेट करना, जैसे मैंने ये तो ऐसे एबीसी जस्ट फॉर एग्जांपल है, इट इज नॉट अ बीएसटी। एक आपने सपोज करो नोट डाली 30, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसका बैलेंस वेक्टर आपका 0 है, इट इज एवीएल ट्री। फिर कहते हैं नेक्स्ट इंसर्शन में 20 की, कोई प्रॉब्लम, इट इज स्टिल एवीएल ट्री क्योंकि इसका बैलेंस वेक्टर बनता है 1, लेफ्ट सब ट्री हाइट माइनस राइट सब ट्री, 1 माइनस 0 1, इसका बन रहा है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते हैं एक इंसर्शन और किया, अब लेट अस सपोज न्यू नोड इंसर्टेड इज 10, अब देखो बैलेंस वेक्टर 30 का डिस्टर्ब हो गया, क्यों, 2 माइनस ऑफ 0, यहाँ का बन गया 2, योर बैलेंस वेक्टर शुड बी -1 0 और 1 ओनली, ये बन गया आपका 2, अब इस सब इसका, और इसका बना है 1, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो 0 ही है, इसका बन गया 2। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज इट इज लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्शन हुआ है, क्योंकि ये लेफ्ट सब ट्री के जिसका बैलेंस वेक्टर डिस्टर्ब हुआ है, उसके विद रिस्पेक्ट टू देखो नोड, आपकी जो लीफ नोड है वो कहां पर आ रही है, कहते हैं लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्शन हुआ है, क्योंकि ये 2 किसके लिए है, लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्शन हुआ है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट के लेफ्ट का केस, लेफ्ट के लेफ्ट, लेफ्ट ऑफ लेफ्ट जैसे भी आप लिखते हैं। तो अब ये लेफ्ट की तरफ हैवी हो गया, इसको उठा के आप राइट की तरफ घुमा दो, ताकि ये बैलेंस वेक्टर्स का बैलेंस हो जाए, क्योंकि लेफ्ट की तरफ जा रहा है, इसको राइट की तरफ थोड़ा सा एक स्टेप घुमा दो। अबाउट द पाइवट नोड, जिस नोड का बैलेंस वेक्टर डिस्टर्ब होता है इंसर्शन ऑफ अ न्यू नोड के कारण, उसको बोलते हैं पाइवट नोड। पाइवट नोड काफी हो सकती है, तो एक बनाएंगे पाइवट नोड, आई विल डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल किसको बनाना है। तो जिसका बैलेंस वेक्टर अभी 30 का डिस्टर्ब, 30 इज अ पाइवट नोड। अबाउट पाइवट नोड आप इसको राइट रोटेट कर दो, क्योंकि लेफ्ट हैवी है, राइट रोटेट किया, अब देखो राइट रोटेट किया, बी आ गया ऊपर, ये वाला जो भी नोड थी, वैसे इट इज नॉट अ बीएसटी, रिमेंबर दिस थिंग्स, इज जस्ट डमी एग्जांपल, बी आ गया ऊपर, ए आ गया सिंपल, दिस इज कॉल्ड लेफ्ट ऑफ लेफ्ट केस, दैट मींस इसकी इज कॉल्ड राइट रोटेशन। आप सिंपल बस याद रखो राइट रोटेशन, राइट रोटेशन कब होगा, जब लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्शन हुआ है और ये पाइवट नोड बन गई है, दिस इज अ न्यू नोड व्हिच इज इंसर्टेड, तो फॉर दिस वी विल डूइंग द राइट रोटेशन अबाउट द पाइवट। आप इतना याद रख लो बस। ये केस क्या आ रहा है, जब आपके राइट के राइट में इंसर्शन है, 30 के राइट पे 50 डाला, कोई दिक्कत नहीं आई, 30 के राइट पे 100 डाला, अब प्रॉब्लम होगी, 30 हैज बिकम पाइवट नोड, राइट के राइट में इंसर्शन हो गया, तो राइट हैवी हो गया, तो इसका आ जाएगा 0 माइनस ऑफ 2, -2 आ गया इसका, इसका बनता है -1, नो प्रॉब्लम फॉर दिस केस, नो प्रॉब्लम फॉर दिस केस, ये आपका पाइवट नोड बन गया 30। तो 30 के लिए इसको राइट हैवी हो गया, इसको लेफ्ट की तरफ, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट रोटेशन। तो लेफ्ट रोटेशन में क्या करोगे, 50 आ जाएगा ऊपर, 30 आ जाएगा इधर, और आपका 100 आ जाएगा इधर, सिंपल लेफ्ट और राइट रोटेशंस। दिस इज एग्जांपल ऑफ लेफ्ट रोटेशन, सिंपल जो हम कर चुके हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ राइट रोटेशन। एक आती है लेफ्ट के राइट में, लेफ्ट के राइट की एग्जांपल क्या है, सपोज कर लो मेरे को, अब इसका बैलेंस वेक्टर क्या होगा इस एग्जांपल में, ये ध्यान में देना, दिस एग्जांपल्स आर नॉट बीएसटी, लेकिन इसको आप बीएसटी बना लेना, गलत एग्जांपल दी हुई है, लेट इट बी ई, लेट इट बी से ए, लेट इट बी बी, इसको आपने ठीक कर लेना अपने अकॉर्डिंग। तो अभी क्या है, इट इज नाउ इट हैज बिकम बीएसटी, अल्फाबेटिकली बन रहा है। अब आपने ये इंसर्ट किया एलिमेंट, तो पहले एलिमेंट था ई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस वेक्टर आपका 0 है इस नोड का, ए इंसर्ट किया, नो प्रॉब्लम, इसका बैलेंस वेक्टर 1 हो गया, इसको इंसर्ट किया, बी को इंसर्ट किया, अब बैलेंस वेक्टर इस नोड का डिस्टर्ब हो गया, इसका तो 0 है, इसका क्या है, लेफ्ट 0 माइनस ऑफ 1 -1, कोई दिक्कत नहीं है, लेफ्ट सब ट्री 0 माइनस राइट सब ट्री, इसका बैलेंस वेक्टर क्या है, लेफ्ट सब ट्री 2, 2 माइनस ऑफ 0 दैट इज इक्वल टू 2, इसका बैलेंस वेक्टर डिस्टर्ब हो गया, तो है तो ये लेफ्ट हैवी। इस केस में क्या करना है, अगर आप सिंपल इसको बोलो कि राइट रोटेट कर दो, तो राइट रोटेशन कैसे होती है, कहते हैं जी ए ऊपर ले आओ जी, ए के राइट में तो बी था, अभी ये जब ए ऊपर आया तो ई ने इसको उठा लिया बी को ध्यान रखने के लिए, तो अभी अभी भी इसका बैलेंस वेक्टर चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर लगेंगे डबल रोटेशंस,
डबल रोटेशंस क्या होती हैं, इसको पता कैसे करते हैं? अगर ऐसा स्ट्रक्चर जिससे न्यूली इंसर्टेड नोड, दिस इज अ पाइवट नोड जिसका बैलेंस वेक्टर डिस्टर्ब हुआ है, इंसर्शन क्या हुई लेफ्ट के राइट में, इसको लेफ्ट राइट रोटेशन बोलते हैं, एल आर रोटेशन भी बोलते हैं, एल आर रोटेशन। एल आर क्यों बोलते हैं? लेफ्ट के पाइवट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुआ है। बस सब ट्री में आगे बहुत कुछ हो सकता है, क्या पता जहां जाके इंसर्ट हुआ हो ताकि इसका हो जाए। इसको बोलते हैं लेफ्ट राइट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट चाइल्ड के पाइवट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में कहीं भी इंसर्शन हुआ हो, राइट सब ट्री में इंसर्शन हुआ है, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट एल आर रोटेशन। तो एल आर रोटेशन में करते क्या, ध्यान से देखो इस चीज को। ऐसा अगर केस आ जाए दिस इज अ न्यूली इंसर्टेड नोड, तो ये पाइवट नोड है, दो रोटेशंस करते हैं इसमें, तो तभी बोलते हैं डबल रोटेशन। यहाँ पर दो रोटेशन में क्या करते हैं, क्योंकि ये एल आर रोटेशन है, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन है, तो एल आर रोटेशन में पहले आप लेफ्ट रोटेशन करोगे, फिर आप राइट रोटेशन करोगे, दो रोटेशंस करोगे। पहले आप करोगे एल आर मतलब पहले लेफ्ट रोटेशन, फिर करोगे राइट रोटेशन। लेफ्ट रोटेशन किसके अबाउट करोगे? पहले करोगे रोटेशन अबाउट द चाइल्ड नोड, फिर करोगे अबाउट द पाइवट ऑफ नोड। चाइल्ड किसका? चाइल्ड ऑफ द पाइवट नोड। नाउ व्हाट इज द चाइल्ड ऑफ द पाइवट नोड? जैसे इसी यहीं पे लिख रही हूं मैं इसी एग्जांपल के लिए, ई ए एंड से ई, सॉरी जो भी था, व्हाट्स द वैल्यू वाज देयर, आई एम लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट द वैल्यू, को बाद में देख लेते हैं। लेट इट बी ए बी सी, जो भी नोड्स हैं हमें नहीं पता, बाद में देख लेते हैं, इसको बीएसटी बाद में बना लेंगे। अब इसके पहला इसका पाइवट नोड क्या है? ये वाली नोड है। पाइवट नोड का चाइल्ड नोड कौन सा है? जिसका लेफ्ट के राइट में, तो लेफ्ट चाइल्ड कौन सा है? ये चाइल्ड नोड है। तो चाइल्ड नोड के अबाउट पहले आप करो लेफ्ट रोटेशन अबाउट द चाइल्ड नोड, क्योंकि एल आर है ना, लेफ्ट के राइट में इंसर्शन है, एल आर रोटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लेफ्ट के राइट में मतलब पहले लेफ्ट रोटेशन अबाउट द चाइल्ड नोड। तो लेफ्ट रोटेशन अबाउट चाइल्ड किया तो क्या आ जाएगा? ए सी, सॉरी जो भी वैल्यूज थी बी, लेट अस टेक सम BST ओनली, ई ए बी ले लेते ताकि पता लगे साथ में हो भी रहा है। तो लेफ्ट रोटेशन अबाउट ए नोड के अबाउट रोटेशन किया तो ये बन जाएगा ई बी ए, ये बन गया। उसके बाद नेक्स्ट रोटेशन एक और करनी है, राइट रोटेशन अबाउट पाइवट। अब पाइवट के अबाउट राइट रोटेशन करो, पाइवट नोड वाज ई, तो ये बन जाएगा बी ऊपर, ई इधर, ए इधर। तो दिस इज द फाइनल ट्री विच विल गेटिंग आफ्टर लेफ्ट राइट रोटेशन। इसी तरह से नेक्स्ट केस आता है, तो ये इसको मत करना सीधा, बस यही आंसर है, ये वाला आंसर ध्यान रखना, ये दोनों आंसर। दिस इज फर्स्ट लेफ्ट रोटेशन अबाउट द चाइल्ड नोड ऑफ द पाइवट नोड, दिस इज द राइट रोटेशन अबाउट द पाइवट नोड। अब राइट लेफ्ट रोटेशन, राइट लेफ्ट की एग्जांपल ले लेते हैं। से ए के राइट में सपोज कर लो एलिमेंट गया, से एलिमेंट इज से लेट द एलिमेंट इज जी, इसके लेफ्ट में है एफ, तो ये आपका BST बन गया सपोज कर लो। तो अब इस एग्जांपल में अब आपको क्या करना है, दिस इज राइट हैवी नाउ, देखो इसकी बैलेंस वेक्टर क्या होगा, 0 -2, तो ये बन जाएगा -2 इसका बैलेंस वेक्टर। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू डू 2 रोटेशंस, बिकॉज इट इज इंसर्शन किसके कारण हुई है, पाइवट नोड ये बनी है, इंसर्शन न्यू नोड कहाँ इंसर्ट हुई है, राइट चाइल्ड के, पाइवट नोड के राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई है, लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई है। तो आप क्या लिखोगे, RL रोटेशन। फर्स्ट रोटेशन इज राइट रोटेशन अबाउट व्हाट, अबाउट द चाइल्ड ऑफ द पाइवट नोड, चाइल्ड ऑफ पाइवट, देन लेफ्ट रोटेशन अबाउट द पाइवट नोड। तो ये क्या बन जाएगा, राइट रोटेशन अबाउट द चाइल्ड ऑफ पाइवट नोड इज G, तो राइट रोटेशन अबाउट G, तो ये बन जाएगा A F एंड G, F ऊपर आ जाएगा, देन लेफ्ट रोटेशन अबाउट पाइवट नोड, ये बन जाएगा F A and G like this। तो ये स्ट्रक्चर कुछ बन जाएगा, you can go through this structure, then right rotation about the pivot, then left rotation about the child of the pivot, then left of this। ये 4 रोटेशंस हैं। अगर ये आपको 4 रोटेशन समझ में आ गई तो आपका पूरा AVL ट्री क्लियर हो जाएगा। ओके, now I will discuss one by one the set of example। आपने इंसर्शन किया, कहते ड्रा द AVL ट्री, एंड पेपर में ऐसा आ सकता है गिवन एग्जांपल 1, जैसे आपका ये इंसर्ट करो और AVL ट्री ड्रा करते जाओ साइमल्टेनियसली। तो एक एक इंसर्शन के बाद आपको चेक करना है, 10 डाला कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस वेक्टर इज फाइन, देन 9 डाला नो प्रॉब्लम, जब 8 डाला अब बैलेंस वेक्टर इस नोड का डिस्टर्ब हो गया, यहाँ पर लिखे हुए बैलेंस वेक्टर, यू कैन कैलकुलेट ऑफ योर ओन, तो हर एक का आप मेंशन करोगे अगर पेपर में आता है तो इसका ये लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्शन है, लेफ्ट हैवी हो गया, लेफ्ट पाइवट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन है, तो आप इसको राइट घुमाओगे, राइट रोटेशन करोगे, इसकी राइट रोटेशन अबाउट द पाइवट नोड।
तो ये ऊपर आ गया, नीचे सबका बैलेंस वेक्टर सेटल डाउन हो गया। फिर हमने इसके बाद हमने इंसर्ट किया 7 इंसर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं आई। जब 7 इंसर्ट की नोड, तो इसका बैलेंस वेक्टर 0 हो गया, इसका बैलेंस वेक्टर हो गया 1, इसका बैलेंस वेक्टर हो गया फिर से 1, इसका हो गया 0, किसी का प्रॉब्लम नहीं आई। फिर 6 इंसर्ट किया तो प्रॉब्लम आई, अगेन इसका लेफ्ट हैवी हो गया। अब देखो दो पाइवट नोड बन रही है, 6 इंसर्ट करने से दो नोड्स का बैलेंस वेक्टर डिस्टर्ब हुआ है। किसको लेना है पाइवट नोड? जो न्यूली इंसर्टेड नोड के इमीडिएट क्लोज विसिनिटी में है, इसको आप पाइवट मानोगे, इसको नहीं मानोगे पाइवट। तो इमीडिएटली न्यूली इंसर्टेड नोड के जो क्लोजेस्ट है, क्लोजेस्ट नोड 8 बनती है, तो 8 के अबाउट पाइवट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सबट्री में इंसर्शन है, तो राइट रोटेशन होगी, राइट रोटेशन अबाउट 8, तो 8 आ जाएगा नीचे, 7 आ जाएगा इसके लेफ्ट में। तो दिस इज द आंसर आफ्टर रोटेशन अबाउट 8 node, that is a right rotation. अब आफ्टर दैट यू इंसर्टेड 5, अब बैलेंस वेक्टर आप कैलकुलेट करके देखो सबका, इसका फिर से डिस्टर्ब हो गया। अब देखो 5 के लिए ये पाइवट नोड है, पाइवट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुआ है, दैट इज द 5 न्यूली इंसर्टेड नोड। लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में, लेफ्ट में इंसर्शन हुआ है, तो आपको फिर से राइट रोटेशन लगाओगे अबाउट द दैट वेरी पाइवट योर दैट इज रूट नोड, जो पाइवट नोड। अब देखो पाइवट नोड 7 आ जाएगा ऊपर, 9 10 चला जाएगा नीचे, 7 के 6 में से ये सब तो है ही। अब ये 8 कहाँ जाएगा? 8 जाएगा, पाइवट नोड विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट नाउ। 8 आएगा, ऑब्वियसली बीएसटी है तो 8 इसके लेफ्ट में आएगा। दिस इज द ट्रिक यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सेम। यही हम प्रोग्रामिंग में करेंगे, इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे। 4 इज इंसर्टेड, नो 4 इंसर्ट करने से वही अगेन लेफ्ट राइट रोटेशन अबाउट 6 की तरफ 5 ऊपर आ गया, और 4 और 6 तो लेफ्ट में राइट में है ही। इंसर्शन ऑफ 3 से कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, 2 को इंसर्ट किया, फिर से वही प्रॉब्लम। अब देखो फिर से अब 3 नोड्स का बैलेंस वेक्टर डिस्टर्ब हुआ है इंसर्शन ऑफ 2 करने से। 3 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, तभी सीक्वेंस इकट्ठा दिखा दिया गया है। 2 के लिए इंसर्ट किया, तो देयर आर 3 नोड्स व्हिच आर whose balance vector has been affected. You have to take this as a pivot node, not this the previous ones, क्योंकि 2 के क्लोज विसिनिटी में जो लेवल वाइज है 4 आ रही है नोड, तो इसको पाइवट नोड मान के रोटेटेड राइट अबाउट दिस, तो यू विल गेटिंग ऑटोमेटिकली बाकी ऊपर वाली सेटल डाउन हो जाएंगे। यू कैन सी 3 नीचे आ गया, 4 और यू कैलकुलेट द बैलेंस वेक्टर, यू विल गेटिंग द बैलेंस ABL tree. That means when you are inserting a new node, after every insertion you have to check the balance vector of the node tree which has been created. If some balance vector is disturbed, immediately do the rotations. Similarly insertion of 1, तो insertion of 1 में अब देखो लेफ्ट पाइवट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन, अगेन रोटेट राइट। अब राइट रोटेट किया तो 3 ऊपर, 5 with the rotation, LR rotation and RL rotation. 4 rotations you have to keep in mind when you are trying with ABL trees. These are sufficient to implement ABL trees. So what is the special about this? We were discussing the balance factor of every node. Balance factor is the difference of height of left subtree as well as the minus height of right subtree. Balance factor of ABL tree should always be lying between -1, 0 or 1. If after insertion of some node, balance factor get disturbed, immediately perform the rotations to adjust the balance factor back within the range of -1, 0, 1 for every node. Let us suppose this is the case, we are inserting a new node A, alphabetically A will come to the left of this. Earlier balance factor was okay for every, this was ABL tree. Now balance factor after insertion of A, balance factor of 2 nodes have been disturbed. You can see clearly that of P and T. Now which node you have to consider? There is one. Some books do say that pivot node means is the node which is whose balance factor has been disturbed. Like if you see clearly the closer node, there are 2 nodes P and T, but the closer node according to level wise, P is the closer node in comparison to that of T. So P being a closer node, so you will have to choose this as a target node, or also called pivot node. So this, from this node you will be considering further the process of rotation. You won't be considering this as pivot node. Now what will happen in this case? If you see clearly, this is the pivot node and the insertion. Now first you have to scan 2 things. One is the child of the pivot node. If you have got the pivot node, child of the pivot node, after that the subtree of that further pivot node. So what is this? Pivot node left child insertion, where it is occurring? In the left child of the pivot node, that is a child.
Further, in the left subtree of this, we are performing insertion. First, you focus on the child. This will be workable for every rotation. Pivot node, left child, and left subtree of that insertion. So that means this is left heavy. Insertion is left to left. So this is left heavy. We have to perform right rotation towards pivot node. Now how to perform right rotation? आपका F चला जाएगा ऊपर, P और आ जाएगा नीचे. तो F का आपका जो right है, the right of F subtree, who will take care of this? F C A as such आपका आ गया. P के राइट में चला गया, F के राइट में चला गया P. तो P का लेफ्ट will take care of this J, which is the right of F. So this is the rotation which will be done. After rotation, immediately आपका जो ट्री है वो बैलेंस हो जाएगा. No need to go for T. अपने वो बैलेंस हो जाएगा. This is called right rotation. This is also called single rotation. आपको सिर्फ एक रोटेशन की जरूरत है. अगर प्राइवेट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हो रही है, you have to do just one rotation about the pivot node. इसको बोलते हैं single rotation. आपने right word की है about the pivot node. Okay. Next comes, if you are inserting, for example, in this case, this is a AVL tree, you are performing insertion of 75. When you are inserting 75, balance factor of this node is being disturbed now. Two nodes. So who will become a candidate of pivot node which is closer to the newly inserted node? तो newly inserted node के closer 30 है, level wise देखा जाए. 80 ऊपर वाले end में आ रही है. तो how to do insertion? First check the child. This is pivot node. इसका चाइल्ड नोड क्या है जी? कहते पिवट नोड के राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन है. तो यू कैन सी पिवट नोड के राइट चाइल्ड के, दिस इज 60 द राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन है. तो राइट के राइट में इंसर्शन है. यू आर यूज परफॉर्मिंग लेफ्ट रोटेशन. लेफ्ट रोटेट करना है अबाउट द पिवट नोड, क्योंकि राइट का राइट हैवी है. तो आपको लेफ्ट रोटेशन करनी है. लेफ्ट रोटेशन में क्या करोगे? 60 आ जाएगा आपका ऊपर, 70 नीचे, 75 और नीचे. 60 का लेफ्ट कहाँ पर जाएगा? क्योंकि 60 के लेफ्ट में 30 हो जाएगा जब आप इस तरफ घुमाओगे. तो 30 का राइट 50 को उठा लेगा. दिस इज द केस ऑफ लेफ्ट रोटेशन. तो आपको ये देखना है कि आपके इंसर्शन कहाँ हुई है पिवट नोड के अकॉर्डिंग. वो आपको कोडिंग में बताया जाएगा कैसे हो रही है. So these are some examples you can go through. It is just one and the same thing. I will just come to the next rotations. You can scan it. अगर कोई डाउट होगा we'll discuss in the extra class. ये सारी एग्जाम्पल उसी को परस्यू करती है. जैसे इसमें किया है 4 आपका जो, क्योंकि ये इंसर्ट किया है 6 को. 6 कहाँ इंसर्ट हुआ है? पिवट नोड के राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुआ है. तो यू आर परफॉर्मिंग लेफ्ट रोटेशन अबाउट पिवट करनी है. तो आपका ये 4 आ जाएगा ऊपर, 2 का राइट ले जाएगा 3, बाकी सारा सेम है. तो इस तरह से आपकी रोटेशन है, लेफ्ट रोटेशन और राइट रोटेशन. यू कैन गो थ्रू दिस. नाउ दूसरी जो थर्ड रोटेशन जो आती है सिंगल की बात होती है डबल रोटेशन. इसको बोलते हैं एलआर रोटेशन या आरएल रोटेशन. डिफरेंट टीचर्स माइट बी यूजिंग डिफरेंट केसेस लाइक लेफ्ट के राइट में राइट केस, राइट का लेफ्ट केस. आई एम जस्ट टेलिंग यू सिंप्लीफाइड वर्जन. इसमें क्या है, अगर आपकी नोड जैसे ये पिवट नोड बन रही है, कैसे पहले ए डाला, बैलेंस फैक्टर इसका 0, फिर आपने बी डाला. आई एम अज्यूमिंग दिस इज अ बाइनरी सर्च ट्री. अभी इसको ए के लेफ्ट में से बी नहीं हो सकता है, जस्ट फॉर डेमो पर्पस. तो ए के लेफ्ट में सपोज भी जो भी वैल्यू डाली, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया आपका +1, इसका हो गया 0, क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट सब ट्री अभी भी ठीक है. जब आपने नेक्स्ट एलिमेंट ई डाला, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका हो जाएगा -1, इसका हो जाएगा +2. तो इसका बैलेंस फैक्टर डिस्टर्ब हो गया. अब आपको कैसे चेक करना है? पिवट नोड के पिवट नोड ये बन गई है, इसके लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हो रही है. लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन. सब ट्री में शायद एक एलिमेंट भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं. वी आर लीस्ट कंसर्न लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में. तो एलआर रोटेशन क्या कहती है? व्हेन देयर इज इंसर्शन इन द पिवट नोड के लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में अगर इंसर्शन हो, इसको ऐसे बोलते हैं लेफ्ट टू राइट केस, लेफ्ट टू राइट इंसर्शन. लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हो रही, तो क्या करना है? 2 रोटेशंस लगेंगी. डबल रोटेशन में 2 रोटेशन. पहली रोटेशन लगती है अबाउट चाइल्ड. डबल रोटेशन में हमेशा पहली अबाउट चाइल्ड लगती है, सेकंड लगती है अबाउट पिवट. क्योंकि ये एलआर रोटेशन है, लेफ्ट के राइट में इंसर्शन हुई है ई की, लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री में इंसर्शन हुई है. तो पहली रोटेशन होगी लेफ्ट अबाउट चाइल्ड, देन राइट अबाउट पिवट. फर्स्ट रोटेशन ये लगेगी, बस ये याद रख लो. सेकंड रोटेशन लगेगी ये. तो फर्स्ट रोटेशन अबाउट चाइल्ड, चाइल्ड क्या है? बी. तो बी के अबाउट अगर रोटेशन लगी तो ये आपका ई ऊपर आ जाएगा, बी इस तरफ आ जाएगा. दिस इज द आउटपुट आफ्टर द फर्स्ट रोटेशन. दिस इज फर्स्ट रोटेशन. सेकंड रोटेशन अबाउट पिवट, पिवट आपका ए है. राइट रोटेशन अबाउट पिवट, यू विल गेट दिस आंसर.
सिमिलरली आरएल केस क्या होता है, रोटेशन कब होती है, जब पिवट नोड के राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन होती है। तो राइट चाइल्ड के जस्ट वेट, तो एक मिनट जरा। तो राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन, तो क्या बोलोगे, दो रोटेशंस लगेंगी। पहली राइट अबाउट चाइल्ड, हमेशा फर्स्ट रोटेशन अबाउट चाइल्ड होती है। लेफ्ट अबाउट पिवट, बस ये करना है आपको। राइट अबाउट चाइल्ड में राइट अबाउट सी करो। लेफ्ट अबाउट पिवट का मतलब लेफ्ट अबाउट, अब जब राइट अबाउट सी किया तो एफ ऊपर आ जाएगा, सी नीचे। लेफ्ट अबाउट ए किया तो आपका ए एफ सी, बैलेंस ट्री हो जाएगा। तो दीज आर कॉल्ड डबल रोटेशंस, एल आर एल आर डबल रोटेशन, बिकॉज इसमें दो कंसेक्टिव रोटेशंस होती हैं। तो दिस आर द फोर रोटेशंस। अगर आपको समझ में आ गई, पूरा आपको एवीएल ट्री समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल आपकी डायरेक्ट ले रही हूँ मैं, एक एग्जांपल है। सपोज करो दिस वाज अ ट्री एंड यू कैन चेक द बैलेंस फैक्टर ऑफ एवरी नोड। दिस वाज अ एवीएल ट्री, आप चेक कर सकते हैं। इसमें 16 को इंसर्ट किया गया, 16 इंसर्ट हुआ, यहाँ पर 16 इंसर्ट हुआ अकॉर्डिंग टू बाइनरी सर्च ट्री कंसेप्ट। जब इंसर्शन हुई, इसका बैलेंस फैक्टर 1 आ गया, इसका बैलेंस फैक्टर भी 2 माइनस 1, इसका भी 1 आ गया 18 का। 15 का बैलेंस फैक्टर -2 हो गया, दिस इज 1। लेफ्ट सब ट्री में आपका 9 है, 1। राइट सब में 1 2 3 है, तो इसका बन जाएगा -2। तो दिस इज हैज बिकम अ पिवट नोड नाउ। तो पिवट नोड में हम क्या करेंगे, नाउ इट इज -2। अब पिवट नोड का चेक करो कि इंसर्शन कहाँ हुई है। कहते पिवट नोड के राइट चाइल्ड, दिस इज अ चाइल्ड नोड, पिवट नोड के राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन हुई है। तो कौन सी इंसर्शन है, राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में। 16 को इंसर्ट किया तो लेफ्ट सब ट्री में, तो कौन सी, राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में इंसर्शन। तो आपको क्या करना है इस एग्जांपल में, तो दो रोटेशंस लगेंगी राइट चाइल्ड के लेफ्ट पर, राइट अबाउट द चाइल्ड। फर्स्ट रोटेशन पहली चाइल्ड के अबाउट लगेगी, सेकंड लगेगी अबाउट द पिवट नोड। तो पिवट नोड के पहले होगी अबाउट द चाइल्ड, दिस इज द चाइल्ड नोड। तो राइट अबाउट चाइल्ड, तो राइट अबाउट चाइल्ड से क्या हो जाएगा, यहाँ पर शॉर्टकट दिखाया हुआ है, तो 15 के नीचे आ जाएगा 17, क्योंकि जब फर्स्ट रोटेशन करेंगे पार्शियल जो आउटपुट आएगी, यहाँ आ जाएगा 18, यहाँ आ जाएगा 19। तो राइट अबाउट हो रही है तो 16 के लेफ्ट में यहाँ 16, ये फर्स्ट रोटेशन की आउटपुट आएगी ऐसे। अब सेकंड रोटेशन की आउटपुट क्या होगी, लेफ्ट रोटेशन अबाउट पिवट नोड, तो 15 घूम के इस तरफ चला जाएगा, यहाँ पहले ये करंट सिचुएशन थी, 15 घूम के ऊपर की तरफ, 17 ऊपर आ जाएगा, 15 नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ऐसे हो जाएगी। 17 आ गया ऊपर, 15 नीचे, 9 नीचे। तो 17 का लेफ्ट कौन लेके जाएगा, 15 का राइट। तो हमेशा जो भी नोड होती है जिसके जो नीचे जा रही होती है वो दूसरे की केयर करती है, तो 15 का राइट बन जाएगा आपका 16। तो दिस इज द आउटपुट ऑफ एल आर रोटेशन, दो डबल रोटेशन आपकी लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट रोटेशन ये लगेगी, पहले रोटेशन अबाउट चाइल्ड और नेक्स्ट अबाउट पेरेंट, पिवट नोड। दिस आर सम एग्जांपल्स, यू कैन गो थ्रू दिस। इसमें एल एल, ये लेफ्ट का लेफ्ट है, राइट रोटेशन लग रही है एंड सो ऑन। आई विल जस्ट डिस्कस दिस केस। इसमें कहते हैं 12 को 13 को इंसर्ट किया, कोई दिक्कत नहीं है। 12 को इंसर्ट किया तो राइट के लेफ्ट में इंसर्शन हो रही है, तो राइट पहले आपकी आ जाएगी राइट के पिवट नोड के राइट के लेफ्ट में इंसर्शन। तो राइट अबाउट चाइल्ड करो पहले, तो राइट अबाउट चाइल्ड क्या होगी आपकी, ये देखो यहाँ पर जा रही है, राइट अबाउट चाइल्ड क्या होगी, 13 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ऊपर, 13 आ जाएगा नीचे। फिर लेफ्ट अबाउट पिवट नोड, पिवट नोड के अबाउट लेफ्ट रोटेशन किया तो ये बन गया। तो दिस इज द पार्शियल ट्री व्हिच हैज बीन शोन, दिस इज द फाइनल ट्री। तो ये आपको रोटेशंस ध्यान में रखनी है, दिस इज द होल स्टोरी बिहाइंड दिस। दिस ऐसे राइट का लेफ्ट है, तो आपका फर्स्ट राइट का लेफ्ट, तो आपका पहले राइट रोटेशन अबाउट चाइल्ड, देन एंड सो ऑन, लेफ्ट अबाउट देन पेरेंट। ये सारा इसका स्टेप बाय स्टेप आउटपुट है इसकी। ओके, जैसे ये भी आर एल की है, ये और एक रोटेशन है, ये एल आर की रोटेशन की एग्जांपल है। लेफ्ट के राइट में इंसर्शन, 55 को इंसर्ट किया, देखो 55 को इंसर्ट किया था, 60 की बैलेंस वेक्टर डिस्टर्ब हो गया, दिस इज द पिवट नोड, दिस इज द चाइल्ड नोड। तो फर्स्ट रोटेशन लेफ्ट के राइट में इंसर्शन है, लेफ्ट के राइट में इंसर्शन, लेफ्ट अबाउट चाइल्ड, राइट अबाउट पिवट, बस ये कर लो। लेफ्ट अबाउट चाइल्ड में क्या होगा, 50 आ जाएगा ऊपर, जब आप लेफ्ट अबाउट चाइल्ड करोगे तो 50 आ जाएगा आपका ऊपर, घूम के जब इसके ऊपर रोटेशन करोगे 50 ऊपर आ गया, 45 इधर। और राइट अबाउट पिवट फिर करोगे तो 50 आ जाएगा ऊपर, 60 एंड सो ऑन। So this is the output, partial output is seen here. This is the final output of the tree. So after you remember this thing, after double rotation or single rotation, आपका ट्री AVL ट्री बन जाता है, तो you don't have to do move further for the same. लॉग एन होते हैं इसमें सारे, हाइट बैलेंस्ड होता है,
वंस नीड स्पेस टू स्टोर आइदर द हाइट और बैलेंस वेक्टर निकालने में, लेकिन सर्चिंग के लिए या मैक्सिमम लुकअप के लिए ये प्रेफर किया जाता है एज कंपेयर टू सर्चिंग में। इंसर्शन डिलीशन इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है, टाइम ज्यादा लेती है, क्योंकि आपको हर बार बैलेंस फैक्टर को अपडेट करना पड़ता है। अदरवाइज सर्चिंग के लिए बेस्ट है। अगर आपको इंसर्शन डिलीशन के लिए और सर्चिंग के लिए एफिशिएंट बनाना है तो स्प्लिट ट्री आर द बेटर ऑप्शन फॉर द सेम।